forgot to start recording. Okay, next after that, and the third one is the reinforcement learning. In that, okay, the at last, okay, when you are going to join some industry, okay, एखादी इंडस्ट्री तुम्ही जॉईन करताय किंवा जॉबला असताय त्यावेळेस जी काय लर्निंग असते म्हणजे in the form of money or the rewards, okay, you can going to learn that. म्हणजे तुम्हाला जर जॉब मिळवायचा असेल तर त्या ठिकाणी you have to fulfill that criteria, and to fulfill that criteria you have to learn something, and that is nothing but reinforcement learning. Okay, this is also it is used in our, okay, this is our general example. हे आपलं जनरल एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे, परंतु आपले जर न्यूरल नेटवर्क मध्ये बघितलं तर सेम केस आहे, तुम्ही बघू शकता. ओके, in supervised learning, just we have last time we have discussed, consider yourself as a student sitting in classroom where your teacher is supervising you how you can solve the problem or whether you are doing correctly or not. Likewise, in the supervised learning, input is provided as a labeled data set and model can be learned from provided the result. Means in supervised learning the input and outputs are fixed. Okay, in supervised learning input and outputs are fixed. Okay, we can, someone has written, Yogesh, you want to write something? Yes, तुम्हाला काय लिहायचं आहे का डेस्कटॉप वरती? Okay, in supervised learning input and output are same, and with the help of that input only we are deciding the next decision. Okay, and in unsupervised learning, okay, the inputs are available, there is no output is available. Inputs are means, like I have given one example, like with born baby. ओके, एखादं जन्मलेलं बाळ असेल तर त्या ठिकाणी त्या गोष्टीला आपण जे सांगेल तेच त्या गोष्टी तो शिकेल त्या ठिकाणी. ओके, दिस इज नथिंग बट inputs are providing depend upon that only. Okay, it will generate the clusters and depend upon that one it will decide that. And the last one is the which one, reinforced learning. Okay, in that with the help of some rewards and penalty we can going to learn. Okay, last time we have discussed that whole about related to. Next, comparison table. This one is the comparison table we have discussed. Okay, some of the according to definition, supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement. Okay, next, type of data. Okay, we are providing in supervised learning labeled data, unsupervised learning unlabeled data, and reinforcement learning we can provide the no predefined data. Next type of problem, okay, these are the depend upon the various criteria it is classified. You go through it, you will understand, no problem. Next, inputs are, okay, here you can see here in supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Okay, here data and labeled data we are providing for the supervised learning, and we are getting the mapping inside that. Okay, in unsupervised learning, data without labeled, okay, we can randomly data we can get in the unsupervised learning, and we can get the classic or the cluster of that data. And last one is the reinforcement learning. In that, states and actions we can get. Okay, we can provide to that, okay, cells, and I can get the actions from some actions from it. Okay, these are the some comparison between these three: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Now we are going to start genetic algorithm. Just I will open next. Okay, can you see this PPT? सगळ्यांना PPT दिसते? Yes, no? Okay, now we are going to start what is mean by genetic algorithm. Okay, first we should understood, okay, what is mean by genetic.
Genetic means we are creating new chromosomes, or we can say that new persons to get better fitness in surrounding, or simply you can say that आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर if two parents are there, with the help of two parents we are generating one new born baby. ओके, त्या ठिकाणी दोन पॅरेंट असतील तर त्या दोन पॅरेंटच्या साहाय्याने आपण काय करतोय तर एक नवीन बॉर्न बेबी तयार झालेला बघू शकतोय. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर तो जो काही नवीन बॉर्न झालेला बेबी असेल तर तो एक तर मेल टाइप मध्ये असेल का फिमेल टाइप मध्ये. ओके, मीन्स सम त्या ठिकाणी जर बघितलं असेल तर सम ऑफ द नेचर्स इट इज कलेक्टेड ऑर द we can say that some of the criteria which will collect by the one person and another person it will collect some criteria. म्हणजे एक बाळ असेल तर त्या बाळाला आई आणि बाबा असेल तर त्या दोघांचे गुण आले असतील का तर काही गुण आपल्याला काय असणार आहे तर आईकडून आलेले असतात आणि काही गुण आपल्याला काय असणार आहे तर बाबाकडून आलेले असतात. मीन्स जेनेटिकली दॅट all the properties is given to that baby. Means त्या दोघांचं कॉम्बिनेशन मिळून त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर इट विल जनरेट न्यू बेबी. मीन्स by combination of two parents we are generating the new cell or the chromosome or the nuclei. Okay, and with the help of that combination of nuclei, okay, we can generate the new baby. ओके, त्या ठिकाणी नवीन बेबी जनरेट झाले तुम्ही बघू शकता. आता हे जर बघितलं तर ह्या दोघांचे गुण त्यामध्ये आल्यामुळं इट इज बेटर दॅन दॅट टू पर्सन. ओके, पाठीमागच्या जे आई आणि वडिलांपेक्षा तो जो काय असेल पर्सन तर त्याच्यातले ह्या दोघांतले चांगले गुण मिळून त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर तो बॉर्न बेबी तयार झालेला असणार आहे. म्हणजे तो काय असणार आहे तर इट विल सर्वाइव्ह ऑफ द फिटनेस विथ हाय लेवल. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी जर त्यामध्ये चांगले दोघांचे गुण असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते जे काही सर्वाइव्ह असेल किंवा ते काय दोघांचं नॉलेज जे असेल तर त्या जे काही नॉलेज आहे त्या बेबीचं ह्या दोघांपेक्षाही काय असणार आहे तर जास्त असेल. ओके, नाउ अल्गोरिदम मीन्स वी आर डिफाइनिंग विथ स्पेसिफिक manner. Okay, that only I have written follow steps inspired by the biological process of evaluation. Means this genetic algorithm it is found from the biological process only. आता बायोलॉजिकल प्रोसेस आपल्याला पहिल्यांदा समजून घेतली पाहिजे तरच आपण ह्या ठिकाणी हे आपल्याला लक्षात येईल जेनेटिक अल्गोरिदम म्हणजे काय. ओके, द फॉलो द आयडिया ऑफ सर्वाइव्हल ऑफ द फिटनेस better and better solution evolve from previous generation until a near optimum solution is obtained. हे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर ह्या ठिकाणी in genetic algorithm we are generating the solution, okay, in better and better by previous one. ओके, ह्या ठिकाणी काय करणार आहे तर नवीन सोल्युशन तयार करेल. ते सोल्युशन हे कसं असणार आहे तर बेटर असणार आहे. ज्या पद्धतीनं आई आणि बाबाचे गुण ज्या पद्धतीने बाळामध्ये येतात त्याच पद्धतीनं जे काही पाठीमागचे इनपुट आहेत ते जे इनपुट पासून चांगलं इनपुट आपल्याला किंवा चांगलं आउटपुट जर जनरेट करायचं असेल तर वी रिक्वायर टू डेव्हलप जेनेटिक अल्गोरिदम. ओके, त्या केसमध्ये आपल्याला जेनेटिक अल्गोरिदम डेव्हलप करायला. नाउ फॉर एक्झाम्पल विल टेक, आता तुम्ही जर बघितलं असेल ओके वन ह्युमन. ओके, ह्युमन जर बघितलं असेल तर आपल्या कुठून स्टार्ट झालेलं आहे इट इज स्टार्टेड फ्रॉम मंकी टू द ओके दिस नाऊ डेज पर्सन. ओके, आता ह्या ठिकाणी जर बघितला तर आत्ताचा व्यक्ती आणि पाठीमागचा अश्मयुगान काळातला माणूस ह्यामध्ये जर बघितलं तर त्या ठिकाणी बराचसा डिफरन्स बघू शकता. ओके, कॅन ह्युमन लुक लाईक मंकी नाऊ अ डे. आता जर बघितलं तर हा जो काही माणूस आहे हा माकडासारखा दिसतो का आताच्या काळात तर यू विल नॉट फाइंड सच पर्सन्स नाऊ डे. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर ड्यू टू जेनेटिक डिफरन्स इट विल
प्रोड्युसेस बेटर अँड बेटर. ओके, त्या ठिकाणी ह्याच्यामध्ये ह्या दोघांचा जो काही बेबी असेल तर त्या ठिकाणी हा नवीन बेबी तयार झाला असेल, ह्याच्यापासून जेनेटिक अल्गोरिदम चेंज होऊन, ओके, जेनेटिक चेंज होऊन त्या ठिकाणी नवीन बेबी म्हणजे ह्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स तो तयार झालेला आहे. ह्या दोघांपासून काय असणार आहे तर नवीन पर्सन तयार झालेले असेल. ह्या दोघांचे जेनेटिक अल्गोरिदम मीन्स बेटर अँड बेटर पर्सन्स आर प्रोड्युसेस विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक अल्गोरिदम. मीन्स we can produce. This is related to biological, but here also in machine learning or in artificial intelligence also, the better solution we can generate by changing the other with the help of genetic algorithm. ओके, म्हणजे चांगले एक सोल्युशन आपण कशा पद्धतीने तयार करू शकतो तर जेनेटिक अल्गोरिदमच्या सहाय्याने आपण त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करू शकतो. Okay, now just we will see how actually it is genetic algorithm is. We will see one video in that you will understood biological genetic how it is carried out. Just wait a minute. जीन या जीन्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ये हमें पता नहीं होता. तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे. सारे जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने हुए होते हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी करीब 37 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है और हर सेल में न्यूक्लियस होता है जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. अब इस न्यूक्लियस में छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स की संख्या हर स्पीशीज में फिक्स होती है. मिसाल के तौर पर हम ह्यूमंस में एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और घोड़ों में 64 होते हैं. क्रोमोसोम्स असल में डीएनए का कंडेंस फॉर्म होता है जो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होता है. डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. हर न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है: डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेसिस. फिर नाइट्रोजीनस बेसिस 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. पहले स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन से बॉन्ड बनाता है. इसी तरह साइटोसिन ग्वानिन से बॉन्ड बनाता है. अब इन ATCG का सीक्वेंस मिलकर कोड लैंग्वेज को बनाता है. अब ये कोड के अलग अलग हिस्सों को ही जीन कहते हैं. इस तरह करीब हमारे बॉडी में 20,000 जीन्स होते हैं. अब इनमें से कुछ जीन्स छोटे होते हैं जो फ्यू हंड्रेड डीएनए बेसिस के बने हुए होते हैं और कुछ जीन्स 2 मिलियन से भी ज्यादा डीएनए बेसिस से बने हुए होते हैं. अब जो इंफॉर्मेशन या कोड जीन में होता है इसे mRNA रीड करता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. आरएनए इस कोड को रीड करके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बनाता है. अब ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी टिश्यूज के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए काम में आते हैं. इन्हीं जीन्स के कारण हमारे मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग होते हैं. मिसाल के तौर पर हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस हम सब में अलग अलग होते हैं. हम ह्यूमंस में 99.9% जीन्स सेम होते हैं. बस 0.1 डिफरेंस की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं. इसी तरह चिंपैंजी और ह्यूमंस में 99% जीन्स सेम होते हैं. तो जीन क्या है? जीन डीएनए के अलग अलग हिस्सों को कहते हैं जो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े, और इन जीन्स में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी टिश्यूज के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए काम में आते हैं. तो यह था जीन के बारे में. इसी तरह Okay, I hope you understood this one. Okay, how actually it is. Okay, inside that every body it is prepared with number of nuclei, and that nucleus inside that, okay, that nuclei is generated with the help of DNA, and inside that DNA there are, okay, inside that DNA we can say that chromosomes are there, and chromosomes, inside that chromosomes you will find this, okay,
जेनेटिक प्रॉपर्टीज, त्या ठिकाणी जेनेटिक प्रॉपर्टीज बघायला भेटतील. ओके, डिपेंड अपॉन चेंज इन दॅट जेनेटिक, ओके, द पर्सन्स आर और द न्यू बेटर सोल्युशन्स आर फाइंड आउट. ओके, पहिल्यांदा मंकी होता त्यापासून नवीन सोल्युशन म्हणजे हा माणूस तयार झालेला आहे. नेक्स्ट वन इज द दिस वन अँड नाउ डे up to this we have progressed. Now here also you will get, okay, two parents are there, or the before that by combining the two parents, okay, we can generate new offspring means it is combination of two DNA. Okay, two parents आहेत तर त्यांचे कॉम्बिनेशन करून आपण काय करतोय तर we are generating new offspring and offspring having consist of, okay, the chromosomes of parent 1 and chromosomes of parent 2, or the DNA of parent 1 and DNA of parent 2. म्हणजे ह्या जो काय ऑफस्प्रिंग तयार होईल तर ह्या दोघांचं काय असणार आहे तर कॉम्बिनेशन असलेलं बघू शकता. नाउ how that genetic algorithm, okay, this one is the cell consists of nuclei. Inside that nuclei, okay, these chromosomes are there, and inside that chromosomes this our DNA part is there. DNA consists of our one coding or the general coding like our binary coding, okay, and that coding having, okay, now we have seen that cytokine, okay, means it will generated with number of chemical composition. Similarly, this DNA consists of number of, okay, elements. Similarly, in our algorithm also we are using the binary codes. Okay, this smallest code, okay, suppose this A1 is the parent, A2 is the parent, A3 and A4, four parents are there. Okay, inside that parent, okay, this small element are known as, okay, this zero single element are known as a gene. The whole component are known as chromosome. Okay, inside that chromosome genes are there. Okay, this chromosome is inside the population, means this combination of chromosomes is nothing but population. Okay, or the human body असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. Okay, might be you understood. This is inside a structure of a biological structure of our genetic algorithm. You will get, okay, this is nucleus. Okay, these are the some chromosomes, chromin. Okay, you will understood that. Okay, now this one is the now medical research. Just we should understood. Okay, this genetic algorithm, inside that we are writing the binary codes. Inside the binary codes, the one digit is known as single digit is known as a gene. The combination of these all units are known as a chromosome, and combination of chromosomes are known as a population. You must understood that much. Okay, similar to here also, this one, these are the nuclei. Okay, these are the chromosomes, and chromosome after DNA means population is nothing but our DNA. Okay, simply we can say that this one is the DNA. Okay, I hope understood. Now just we will go through it. Okay, after scientists became the directly we should understood what is meant by G. A genetic algorithm is a such a technique used in computing to find a true or approximate solution to optimize and search problem. Okay, so तुम्ही म्हणजे असं ह्याचा यूज करून how to optimize or how to find the true solution. Okay, how we can find? Okay, there are different algorithms are available, genetic algorithms are available. With the help of that, we can find the solution. Okay, like we have seen in the initial stage, how to solve the any problem with the help of branch and bound technique. Okay, these are the some technique we can use it in this genetic algorithm. Okay, genetic algorithm are categorized as global search heuristic. In genetic algorithm are a particular class of algorithm that use techniques inspired by, okay, biology, such as inherent mutation, selection and crossover. Okay, mutation might be, you know, okay, now corona
change the mutation. Mutation means mutation. Now you have heard this mutation word in everywhere, mutation, or it will generate the new variant. Okay, which one variant? Omicron might be you have seen. आता जर म्युटेशन म्हणजे काय आहे तर कोरोनाचा एक म्युटेशन म्हणजे काय आहे तर आपला ओमिक्रॉन आहे. मीन्स इट विल चेंज द नेचर ऑफ डीएनए. डीएनएचं नेचर जर चेंज झालं तर इट विल जनरेट द म्युटेशन. ओके, म्युटेशन काय होणार आहे तर किंवा नवीन व्हर्जन ज्याला आपण म्हणतो त्याला आपण काय म्हणतो तर म्युटेशन असं म्हणतो. म्हणजे जर आपण एखादं ऑटोकॅडचं व्हर्जन यूज करत असेल आणि न्यू व्हर्जन जर आलं तर ते काय झालं तर त्या ऑटोकॅडचं न्यू म्युटेशन. ओके, ऑटोकॅड आता 2012 असेल and now it is 2021, then we can say that AutoCAD 2021 is the mutation of AutoCAD 2000. Okay, like that. And crossover, we will see how to cross over any, okay, in next lecture. Okay, next, what is GA? Again, genetic algorithms are implemented as a computer simulation in which a population of abstract representation called chromosomes or the genotype or the genome of a candidate solution called individual creature or to an optimal problem evolve towards a better solution. Okay, these algorithms are generally used for just simply you can remember these algorithms are used for finding the best solution or the true solution. To find true solution we require this genetic algorithm. Traditionally, solutions are represented in binary as a strings of zeros and ones. Means now we have seen at initial state, okay, any, okay, here you can understood the chromosomes are represented in the form of genes of 1 and 0. Okay, this one is the our binary coding in the genetic algorithm, and this genetic algorithm it is represented in the forms of ones and zeros. 1 आणि 0 मध्ये represent केलेले तुम्ही बघू शकता. Okay, next one is the evaluation usually start from the population of randomly generated and individuals and happens in generation. Okay, each generation the fitness of every individual in the population is evaluated. Multiple individuals are the selected from current population based on their fitness and modified to form a new population. Okay, means by combining the parent 1 and parent 2, okay, chromosomes or the DNA, we can produce the next offspring, and that offspring having the fitness of parent 1 and parent 2. Okay, fitness of parent 1 and parent 2 means suppose एक एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एक आई आणि बाबा आहे, त्यांचा एक नवीन मुलगा. ओके, त्या मुलाचे फिटनेस म्हणजे काय म्हणतोय तर जे पप्पांचे आणि किंवा वडिलांचे आणि आईचे जे काही गुण आहेत चांगले गुण ते त्या बाळामध्ये आलेले असणार आहेत. आणि ते जे काही फिटनेस आहे म्हणजे आईचे सपोज एक लहान बेबी गर्ल असेल तर आईचे आपण म्हणूया की स्वयंपाक करण्याचे गुण किंवा त्यापासून जे काही नवीन गुण तयार होतील आईपासून जे गुण येतील त्या मुलीला ते म्हणजे काय असणार आहे तर फिटनेस ऑफ दॅट बेबी. वडिलांकडून काही चांगले गुण येतील म्हणजे जर वडील जर शार्प असतील तर वडिलांचे जे काही चांगले गुण आहेत तर त्या बेबी मध्ये आले असतील तर इट इज फिटनेस ऑफ दॅट बेबी टू द पॅरेंट. ओके, त्या पॅरेंटची काय असणार आहे तर फिटनेस असेल. ओके, नेक्स्ट व्हॉट इज जी again the new population is used in the next iteration of the algorithm. Commonly the algorithm terminates when the either a maximum number of generation has been produced or the satisfactory fitness level has been reached for the population. If the algorithm has terminated due to a maximum number of generation, a satisfactory solution may be not have been reached. Just we will see that. Okay, one video, and with the one video we will understood. Okay, here we are using the different terms like individual means any possible solution, population means group of all individuals,
means DNA. In your biological, DNA is our group of all individual, and search space all possible solution to the problem. Chromosomes blueprint of individual. Okay, means chromosome of each and every ones are different one. Okay, for that we can write blueprint of individual. Okay, these are the some genome collection of chromosome for a individual, like that only locus, allele, trait. Okay, these are the some terms we can use now hereafter. Just we will see. Okay, how that chromosomes. हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। Okay, will understood. Okay, genetic algorithm. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में, और इस वीडियो में हम जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम? जॉन हॉलैंड। और उन्होंने जो आइडिया दिया वो क्या है? वो आइडिया पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्शन है किसका? रियल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। मतलब जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, कैसे दो पेरेंट मिलके एक न्यू चाइल्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, एक न्यू चाइल्ड पैदा करते हैं और अपना बेस्ट जो है वो पास करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब वो जो नई जनरेशन है वो आगे मेट करेगी और वो आगे एक और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो पैदा करने की कोशिश करेगी। तो ये हो क्या रहा है? जीन्स जो है वो बेस्ट जीन्स जो है वो ट्रेवल हो रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में। इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है ये जेनेटिक एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस में से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बेस्ट सॉल्यूशन को पैदा करना है। वो कैसे होगा? जब दो पेरेंट मिलके एक चाइल्ड को जनरेट करते हैं, हो सकता है ऑब्वियसली उस चाइल्ड में पेरेंट के तो गुण आ ही गए और एक्स्ट्रा भी गुण उसमें आएंगे। अब वो एक नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेगा तो ऑब्वियसली उसमें और ज्यादा जो स्पेशल गुण आएंगे। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज मेनली फोकस ऑन द ऑप्टिमाइजेशन। मतलब यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर रहे। नॉर्मल एल्गोरिदम क्या करते हैं? वो एक इनपुट लेते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम ये वाला फंडा नहीं कर रहे। हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस में से हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, हम सिंपल प्रॉब्लम्स को यूज नहीं करते। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम, जनरली जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम है, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कितनी होती है? बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो उनके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम जो है वो नॉर्मल एल्गोरिदम काम नहीं करते। तो उनके लिए हम यूज करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम, जहां पे हमारे पास सर्च स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब उसको बोल रहे हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस पॉपुलेशन में से, उन गिवन पॉपुलेशन में से हमें बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। यही मेन जो फंडा है किसका? जेनेटिक एल्गोरिदम का। और यही हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी सेम यही काम कर रहा है। उसी आइडिया के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जेनेटिक एल्गोरिदम बेस्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द बेस्ट विल सर्वाइव। यही जैसे हम बायोलॉजिकल उसमें बोलते हैं कि इंडिविजुअल का यहाँ पे मतलब है क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स बेस्ट होंगे वही फिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी जो है आपने पढ़ी होगी, डार्विन ने दी थी, कि जो फिट है मतलब जो हमारे पास हजारों जीन्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल जो मोस्ट फिट है वही आगे जाके जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो वही जो पॉइंट है वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसके अंदर? जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर। इससे होगा क्या? हमारा जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज होता रहेगा। एवरी जनरेशन में हमारा रिजल्ट और ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज होता रहेगा। यही पूरी की पूरी कहानी है किसकी? जेनेटिक एल्गोरिथम की। और यहाँ पे हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, वही जैसे जीन्स है, क्रोमोसोम्स है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जो टेक्निकल टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस पीपल, तो ये जो दो टर्म्स है बहुत सारी यूज होती हैं, दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप।
फिनोटाइप का मतलब है आपके पास जो सर्च स्पेस, जो सोल्यूशन स्पेस अवेलेबल है रियल लाइफ वर्ड में, जिसका मतलब क्या है कि प्रॉपरली कोई रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जब भी हम एल्गोरिदम को कोई इनपुट देते हैं, उसको इनपुट देने से पहले हमें प्रॉपर उसको एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब जब वही रिजल्ट, जब वही पूरा का पूरा सोल्यूशन स्पेस जब कंप्यूटेशन में आ जाता है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। दोनों चीजें हैं सेम ही, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप एक रॉ डेटा, एक रॉ सॉल्यूशन है, उस रॉ सॉल्यूशंस को हम एनकोड कर रहे हैं जीनोटाइप में। मतलब जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर में रिप्रेजेंट करना, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर में रिप्रेजेंट करना, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेसिकली जीनोटाइप। जिससे होता क्या है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली वर्क करता है, क्योंकि अगर हम जितनी फाइन इनपुट देंगे उतना ही फाइन आउटपुट आएगा। अगर हमारी इनपुट ही नॉइसी होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं आएगा। तो ये बेसिक फंडा है जेनेटिक एल्गोरिदम का। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की हमारे पास ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन। और इनिशियल पॉपुलेशन में जेनेटिक एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपका एक पॉइंट के ऊपर या दो पॉइंट के ऊपर फोकस ना हो, आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो। जैसे कि हम बात करते हैं अगर एग्जिट पोल में अगर वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को फोकस करेंगे तो उनका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। वो इसीलिए सारे एज जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करते हैं, ताकि डाइवर्स, जितना हमारा इनपुट डाइवर्स होगा उतना ही हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर इनिशियल पॉपुलेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कैलकुलेट द फिटनेस। फिटनेस का फंडा क्या है कि जो हमारा इनपुट है उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर, जो मोस्ट स्टेबल आउटपुट दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एक फिटनेस फंक्शन। जैसे कि अगर सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, हमारे पास 4 डिजिट का एक वर्ड है मेक। अब 4 डिजिट का एक वर्ड है मेक, मुझे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पास लेट्स से एक वर्ड है टेक। अब यहां पे अगर हम बात करें कि मेरे को ये मेक वर्ड को बनाना है, लेकिन मेरे पास जो वर्ड है वो क्या है, टेक। अब इस इनपुट का कितनी फिटनेस वैल्यू हो सकती है, ये आप कैसे निकाल सकते हो कि कितने वर्ड्स यहाँ पे मैच करते हैं, मेरे आउटपुट से कितना रेलेवेंट है। तो देखो ए भी यहाँ पे है, के भी है, ई भी है, तो इसको आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसकी जो फिटनेस वैल्यू है क्या है, 3। ये अलग अलग मेथड्स है फाइंड आउट करने के, लेकिन अगर आपको एक मेथड भी आपके माइंड में आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फिटनेस का। ऐसी अगर हम बात करें, लेट्स से एक और वर्ड है मेरे पास ABCD। अब ABCD में देखो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, नहीं है, सी है, नहीं है, डी है, नहीं है, तो इसकी फिटनेस वैल्यू क्या हो गई, 1। कि कितना ये आउटपुट के साथ रेलेवेंट है उसको हम बोलते हैं फिटनेस। तो फिटनेस वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, फिटनेस फंक्शन को। और उस फिटनेस फंक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं सिलेक्शन। यहां से हमारा स्टार्ट होता है जेनेटिक ऑपरेशंस। जेनेटिक ऑपरेशन में सबसे पहला फंडा क्या है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फिटनेस फंक्शन से। मतलब जितना आप ज्यादा फिटनेस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन जो है वो बेटर होता जाएगा। मतलब हमने क्या करना है, बेस्ट पेरेंट को फाइंड आउट करना है। तो बेस्ट पेरेंट कौन होंगे, जिनका फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब मैं ऑब्वियसली इसको कंसीडर नहीं करूंगा इन द सिलेक्शन, मैं इसको कंसीडर करूंगा टेक को। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स से केक। तो ऑब्वियसली मैं केक में भी क्या है, देखो 1 2 3 3 वर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो इसका भी फिटनेस क्या हो गया, 3। तो ऑब्वियसली मैं उन सारे वर्ड्स को, उन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा जिनकी फिटनेस वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। और इसमें हम जल्दी 2 पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम एक नई पॉपुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन जो है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉसओवर का फंडा क्या है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द क्रॉसओवर। जैसे कि हमारे पास एक मेथड है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब है, लेट्स से अगर हमारे पास वर्ड है ABCDE और दूसरे पेरेंट में है लेट्स से EFGHI, तो होता क्या है, 1 पॉइंट में हम एक रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से हमारा रैंडमली पॉइंट है
ये वाला। अब 3 के बाद मतलब राइट साइड में इस लाइन के जितने भी वर्ड्स हैं हम उनको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, और उससे क्या होगा, एक नया ऑफ स्प्रिंग, एक नया चाइल्ड जो है वो जनरेट होगा। वो क्या वैल्यू होगी, ABCHIEFGDE। तो देखो इन दोनों को, इस लाइन के बाद जितनी भी वैल्यूज है उनको हमने स्वैप कर दिया। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, मल्टी क्रॉसओवर मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है जिनको हम यूज करते हैं, जो नॉर्मल बायोलॉजी में भी यूज होते हैं, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इससे होगा क्या, एक नई पॉपुलेशन जो है वो हम जनरेट करें। और इस पॉपुलेशन का फंडा क्या है, इसमें और ज्यादा फिटनेस वैल्यू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा म्यूटेशन है, म्यूटेशन में भी हम जनरली क्या कर रहे हैं, देयर आर अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन वैल्यूज, जहां पे हमारे पास आती है स्वैप है, हमारे पास बिट फ्लिप है, मतलब एक बिट को हम फ्लिप करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी आउटपुट आ रही है, जितनी भी पॉपुलेशन नई जनरेट हो रही है, वो पॉपुलेशन ऑब्वियसली पुरानी पॉपुलेशन से ज्यादा बेटर होनी चाहिए। अगर आप नई पॉपुलेशन जनरेट कर रहे हो और वो पॉपुलेशन आपको आउटपुट तक लेके ही नहीं जा रही, तो फिर उस पॉपुलेशन को जनरेट करने का फायदा ही क्या। मतलब आपने एक पॉपुलेशन जनरेट किया, उसमें एक वर्ड है, एक इंडिविजुअल है, लेट्स से EFGH। अब EFGH को आपने अपने आउटपुट के साथ कंपेयर किया, तो देखो कितने वर्ड मैच कर रहे हैं, एक, दैट्स इट। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी था, जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन थी उसमें ऑलरेडी हमारे पास फिटनेस वैल्यू 1 थी, 2 थी मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू को जनरेट करना है, ऐसी पॉपुलेशन को जनरेट करना है बाय यूजिंग द क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन, जिनकी फिटनेस वैल्यू पुरानी पॉपुलेशन से बेटर होनी चाहिए। और इस स्टेप को हम लगातार लगातार कॉन्टिन्यूटी में रखते हैं, कब तक, जब तक हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं आता। स्टॉपिंग क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, एक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी फिटनेस वैल्यू हाईएस्ट आ रही है, मतलब आप ऐसी पॉपुलेशन जनरेट कर दी आपने कि जिसमें फिटनेस वैल्यू हाईएस्ट है, और ऑब्वियसली आप उस पॉइंट पे स्टॉप कर जाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो फाइनल आउटपुट वो क्या आनी चाहिए थी, मेक। और जो पॉपुलेशन हमारे पास म्यूटेशन और क्रॉसओवर के बाद आ रही है, उसमें क्या वर्ड्स आ रहे हैं, लेट्स से AKME, KAME, इस तरीके से वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखो इनकी जो फिटनेस वैल्यू क्या है, 4। इसकी फिटनेस वैल्यू क्या है, 4। मतलब आपने एक ऐसी पॉपुलेशन जनरेट कर दी, उस पॉपुलेशन में सारों की जो फिटनेस वैल्यू है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। मतलब वो सारे के सारे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे, मतलब हमारे को ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हमें अगेन वापस जाना पड़ेगा, नई फिटनेस वैल्यू अगेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस फिटनेस वैल्यू के बाद अगेन मेरे को बेस्ट पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगेन क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन, और फिर हम इस स्टेप को जो है वो लूप में चलाते रहेंगे जब तक हम कन्वर्जेंस स्टेट पे नहीं आ जाते, मतलब हम एंड पॉइंट पे नहीं आ जाते। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल। Okay, I hope you understood this, what is mean by genetic algorithm and how it is carried out. Okay, we have seen terms related to next genotype and phenotype. Okay, genotype means okay a particular set of genes. Okay, if I take here, this one is the this one set of gene. Okay, 0 is the one gene. If it is one set of gene, then we can say that it is genotype. And second one is the, which term we have seen, phenotype. Phenotype means okay physical character of that genotype. Okay, physical character means beauty, health, like that only we can say that genotype and phenotype. Okay, might be you understood in that only. Okay, you have understood. Here also you will find the difference between genotype and phenotype. Okay, let's by combination of these two, okay, we can generate the new one. Okay, this one is the genotype, and phenotype means randomly. Okay, anything. These are the phenotype, and this one is the genotype.
Next, a requirement of genetic algorithm is, just we will go through it, which are the requirements required. Okay, a typical genetic algorithm required two things to be defined. Which are those? A genetic representation of the solution domain and a fitness function to evaluate the solution domain. Okay, these two techniques must be fit, okay, while designing this algorithm. Okay, which are those? Solution domain, okay, a genetic representation of the solution domain and the fitness function to evaluate the solution domain. These two. And next, the standard representation of the solution is an array of bits. Array of the other type of and structure can be used in essential the same way. Means you will find if you represent this, okay, which one? If you want to represent these genes and chromosomes in the program, it must be in a array function. Okay, might be you understood. म्हणजे हे जे काय तुम्हाला जर लिहायचं असेल, ओके, तर तुम्ही काय करता, तर बायनरी कोड लिहित असेल किंवा 0101 तुम्हाला जर प्रिंट करायचं असेल, तर यू हॅव टू राईट इन द फॉर्म ऑफ अरेज फंक्शन इन प्रोग्राम. कसं लिहायला लागेल तर तुम्हाला अरेच्या फॉर्म मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, किंवा यू हॅव रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग ऑल्सो. सी प्रोग्रामिंग मध्येही तुम्ही त्या पद्धतीनं लिहिलेलं असेल. ओके, नेक्स्ट, arrays of types and structure can be usually essential the same way. The main property that makes this genetic representation conveys in that their parts are easily aligned due to their fixed size and facilitate simple crossover operation. Means again, this genetic or the genes and chromosome having the same size means easily we can cross over or we can generate the new mutation. Mutation means new generation of that baby. Okay, we can generate a new with the help of that one. Yes, Avinash, you want to say anything? Avinash Lunde. Okay, to generate new chromosomes, or you can remember that the chromosome having the same size. हे जे काही chromosome ची size आहे, किंवा in our genetic algorithms we can say that binary code of length must be same everywhere. Okay, binary code काय असायला पाहिजे तर सेम असणं एक्सपेक्टेड. कोणत्या कोणत्या गोष्टी लक्षात येतात बघा, काय काय पाहिजेत. It is represented in the form of array and the chromosomes or the genes must be having the same size. Next, variable length represent may also be used, but crossover implementation is more complex in this case. Okay, means we can produce with different genomes or the different length of genomes, but it is difficult while crossovering. Okay, crossovering म्हणजे त्या ठिकाणी by generating new gene or the new mutation or the new offspring or the baby. सगळ्यात गोष्ट सगळ्यात लक्षात ठेवा की दोन पॅरेंट आहेत, त्या दोन पॅरेंट आणि पॅरेंटची लेंथ काय पाहिजेत, ओके, तर सेम पाहिजेत. ह्या दोघांपासून नवीन बेबी जनरेट करताना ह्या दोघांचीही काय असणं गरजेचं आहे, तर त्या ठिकाणी तर आपले जीनोम सिक्वेन्स हे सेम असणं एक्सपेक्टेड. ओके, लक्षात येते. आणि लेंथ ही काय असेल तर त्या ठिकाणी सेम, इट इज रिक्वायर्ड सेम. नेक्स्ट, ट्री like a representation are explored in genetic program. Okay, this representation chromosome could be, okay, in bit string, real numbers, pre-mutation of element, list of rules, program elements, or any data, structured data. Okay, these many
type, we can represent the chromosomes. Okay, representation of the chromosomes. Again, next, there are again some different requirements we require while designing the genetic algorithm. Which are those? Just we will take one overview of that one. Genetic algorithm requirements. The fitness function is defined over a genetic representation and measure the quality of a represented solution. Means this representation must be same and fitness must be more and more. Fitness means now only that in video we have seen. Okay, fitness means okay with output how much amount of it will match. Okay, म्हणजे त्या ठिकाणी जर बघितलं तर 1 2 3 4 and if I write different number, okay, like I will write here, if I write 1 2 3 4 5 and second word if I take 3 2 8 9 8 7, then fitness of these two words are, this one is the we record output, this one is the output, this one is the input. Then if you check this in these two, then you will get the fitness of this word is किती आहे बघा तर त्या ठिकाणी तर 2. ओके, फिटनेस काय आहे तर 2 आहे. ओके, आणि जेवढी फिटनेस जास्त असेल तेवढे आपल्याला वी हॅव टू चूज द आउटपुट. Okay, next, the fitness function is always problem dependent. जे काही फिटनेस फंक्शन असणार आहे ते काय असणार आहे तर प्रॉब्लेम डिपेंडेंट असणार. फॉर इन्स्टन्स इन द problem we want to maximize the total value of object that we can put in the snapshot of some fixed capacity. Okay, again that one it is written similar to that one. A representation of a solution might be array of bits. Okay, in previous slide only we have discussed it is represented in the array form where each bit represent object that value 0 or 1 represented where a not object is in the snap. Okay, not every such representation is valid as the size of object may exceed the capacity of the snap. Again, the fitness of the solution is sum of the value of all objects in the snap. If the representation is valid or 0 otherwise, in some problems it is hard or even possible to define the fitness expression. In these cases, interactive genetic algorithm are used. Now here you will understood the fitness function. Okay, here we have to use the fitness function and depend upon we have to rank. Okay, these are the some binary codes if you have provided, then binary codes are computerized and that it is written in the ranking manner. Okay, we will see this part in the next lecture, and after that remaining part we will discuss in the next lecture. Okay, everyone should write your division and roll number. Like if your division is, okay, I will write B division, then BB, like you can write your roll number, and don't write only number, write your division first and then you can write your roll number. Write down fast, just will end. Remaining student, write down fast. Okay, I will wait for 2 minutes. You can write that roll numbers. Write down fast, others. Write down your division and roll numbers.
Remaining student, write down fast. Students are remaining. Write down fast that students. Write down your division first and roll number. Sequence 49, 60, 67, 67.